Hello everyone, welcome to our new episode of Kathor Vaani, brought to you by the Student Alumni Committee of IIM Rohtak. Today we have with us Mr. Sanyam Raheja. Sir is an ex-merchant navy officer who joined IIM Rohtak for his MBA in 2017. He has previously worked as a category manager at Homelane and as a city manager at Oyo. Sir is currently having his own startup, Garden of Joy, which he started in May 2022. We are delighted to have you here, sir. Thank you so much. Yeah, Cool. so let's Let's begin with a start. formal segment. While you were working in the merchant navy, what motivated you to pursue MBA? So I think it was time when I had to be a little more practical in life after all the adventure part was completed. So I had heard stories from people in merchant navy who used to say ki my my son is like 6 months old or something, and when I go back home, like my son grows a little bit and he doesn't even remember me for the first few days. They were like scary stories of people who used to say, how hard it gets eventually over time. So I thought ki, I should, build a safety net first in my life. So I would say MBA is a good safety net. आप एक बार MBA कर लेते हो उसके बाद आप कुछ भी कर लो एटलीस्ट आपको पता है यार नौकरी तो मिल ही जाएगी मेरे को इसके बाद में कोई रीजन था या Thanks for such an amazing answer. Now, my next question will be that you had a fair share of corporate experience. So, how has that been, and how this experience has helped you in your entrepreneurial journey? My corporate experience was a very mixed one and a very, again, unconventional one because I only worked in startups. So my first company was Oyo and second one was Homely. And startup may work will be very different from what it could be in bigger companies. So I haven't worked in them, so I don't have a reference point. But of course, I've heard from people and friends, how their working culture is and how is it different from mine. So mine was a whole another game. Like I'll tell you what my first day at work in Oyo. So I had joined their subsidiary called Weddings.in, which was an aggregator for event places like your banquet halls or small party areas, hotels, and all of that. So we had to go to all these owners and meet them and have a relationship with them in a way that the business goes on smoothly in the long term. And I was posted in Lucknow, and my first day at work and my first corporate experience, even though I was what 26, 27 years old, but my first proper job, so to say, because I had worked in merchant navy. First day at work, and I land in Lucknow in the morning, and 9 o'clock somebody tells me that you have to go to this venue owner and उसका इतना पैसा बाकी है, and you have to tell him कि मेरे को इतना का चेक बना के दे दो. Then क्या चल रहा है, मतलब ये क्या नौकरी है भाई, मतलब कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, क्या करवाएंगे. And I go there, some 85-year-old man sitting in his shabby office or something, and I'm like telling him कि भाई ये सर 30,000 का चेक चाहिए मेरे को. It was a very strange experience, मतलब starting में, but in the hindsight, it काफी कुछ सिखाया उस experience ने मेरे को. So it was sort of a work where you had to go meet all these people. You had to learn sales skills. You had to lead people. Matlab, they were a team of about 8 people in the beginning. You have to ensure that your area or city is profitable. So it was a very unique sort of experience over there. Very confusing also at times. So that was the Oyo part. जिसमें I had learned, I would say, sales a little bit, team handling, a bit of operations and all. Second experience was of category management, जिसमें when I had joined, I was actually a city manager, but I told them that I have a category manager experience. So
for the first 3 months, I was just faking it, like it was fake it till you make it sort of a thing. So even though I pretended that I am a category manager, but in reality, I was not. So first 3 months, I was just confused कि करना क्या है, but जो भी मुझे काम मिलता था, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा टाइम. तो second experience में, since you're a category manager, you handle little bit of everything. It's a general management kind of experience. So you could be interested in marketing, you could be interested in finance, operations, sales, कुछ भी हो category में, there is everything of little bit. You even have to hire people, you even have to interview. So I think except a little bit of accounting and all, मतलब सब कुछ आप कर डालते हो category management. You even have to strategize a lot. तो कुछ भी नहीं बचता है. तो आई थिंक ऑल दैट general management experience, P&L handling experience gave me that a little bit of boost and that confidence key, I can manage a company on my own. It's a pretty much the same thing. You're handling everything when you are running a company basically. So yeah, that was about it. Thanks for the answer. So the last question of this segment would be that what were the initial challenges that you faced in your startup Garden of Joy, and an advice that you would like to give to the budding entrepreneurs watching this podcast? Initial challenges. So I'll tell you, I was telling you about this OYO experience. So there was one venue partner of mine who was a great entrepreneur in Lucknow. He had opened the first amusement park of Lucknow. So he was a very motivational kind of a person. Matlab, I used to go for meetings and all, and used to get motivated talking to him. So I just told him one time just like that कि सर मतलब आपके जैसा बनना है मेरे को. आप जिस हिसाब से आपने स्टार्ट किया with nothing ऐसा कुछ करना है. तो he used to say one thing कि यार जो entrepreneur होता है ना वो अलग ही होता है बंदा. तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि भाई क्या बोल क्या रहा है ये, मतलब अलग ही होता है क्या होता है, मतलब कोई भी कर सकता है, मन में तो ये था कोई भी कर सकता है. बट जब स्टार्ट किया तो तब पता चला कि मतलब उस दिन कि भाई वो सही बोल रहा था. मैंने उसको फिर मैसेज वैसेज भी किया कि भाई मैंने भी स्टार्ट किया है ये वो. थैंक यू बोला कि आपने बड़ा गाइड किया उस टाइम में करके. तो जो मतलब इनिशियल में जो एक एंजाइटी लेवल होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है, वो मेरे ख्याल से बहुत अलग ही होता है. मतलब मेरे को ऐसा लगता था, आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने बहुत कुछ किया है मतलब लाइफ में ना. मैंने तो ये मर्चेंट नेवी भी कर लिया और पता नहीं कितना कुछ घूम लिया. और मुझे लगता था यार मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, तो बहुत कुछ किया, काफी चीजें मैं बता नहीं सकता अभी यहाँ पे. तो मतलब वो सब एक ही सेकंड में खत्म हो गया था जब मैंने मतलब जो एक्चुअल चैलेंजेस फेस किए ना जब स्टार्टिंग में. बिकॉज द स्टेक्स आर सो हाई, राइट? लाइक इन अ जॉब कि कुछ भी हो जाए सैलरी तो आएगा ही आएगा. बट व्हेन यू हैव योर ओन कंपनी तो वो नहीं रहता है. तो यू हैव टू बी, यू कांट गिव अप एट एनी पॉइंट. So it's initially, I think it's challenging. You have to be relentless. You have to work much harder than you would in job. So starting में I think हाँ it was a bit tough, but now it has been about 6-7 months. तो I think वो थोड़ा कम हो गया है in type. But yeah, it's still very early stage in the company. I think it's still long way to go. अभी तो it's like so new. I don't even know. I don't even call it a startup. It's so just very early as of now. So I think कुछ ना कुछ नए challenges आते रहेंगे. मतलब every day it's something new. मतलब समझ में भी नहीं आता कि ये क्या हो गया अचानक से. Then you have to deal with something new every day. So that way it's a bit. It can be a bit rough. Like there could be more bad days than good days in entrepreneurship, especially in the beginning. But I think in the end, it's all worth it. And I think अगर थोड़ा सा आपका सनकी दिमाग है तो आप कर लोगे. मतलब अगर ऑर्डिनरी हो आप तो फिर नहीं कर पाओगे.
So yeah. Great, great. So now I'll invite Hari Krishnan to continue with the informal segment. Sure. Hey Sanyam, Hey. so we'll start with the informal segment. The first one Sure. is as our summer internship process is around the corner, what would your advice be to the students in order to motivate them? यार पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि समर इंटर्नशिप में क्या करोगे? मतलब आप 2 महीने हैं, 2 महीने में क्या ही फाड़ लोगे? तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट इज योर इंटेंशन इन समर इंटर्नशिप? फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा, कैसे एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस होगा फ्यूचर में, उसका एक शुरुआत मिल जाएगा। That's what we are trying to- बेसिकली अभी यू आर, अच्छा, सो सिंस दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो यू आर अ फ्रेशर, तो फॉर यू तो इट्स अ होल अनदर बॉल गेम बेसिकली। यार इंटर्नशिप में ना, इंटर्नशिप और जॉब में बस यही फर्क है कि internship में nobody has any expectations from you because you're there for 2 months. So in a job, if you are working, somebody is paying you a good salary, then they'll have expectations कि end of the month में ये बंदा कुछ result ला के देगा, या कुछ revenue growth होगा, या फिर कुछ भी जो भी आपका KPI है वो अचीव होगा। बट इंटर्नशिप में ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब 2 महीने के लिए आपको बेसिकली अपॉर्चुनिटी दे दिया। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो ये चाहेंगे कि यार बंदा इतना सॉलिड निकले कि इसको मैं फुल टाइम जॉब ऑफर कर दूं, PPO ऑफर कर दूं, ताकि उनका भी काम इजी हो जाए, बाद में उनको हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो आप सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसको क्या चाहिए। 2 महीने के लिए इंटर्नशिप देके उसको क्या मिल जाएगा? आप ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम तो कर नहीं दोगे 2 महीने में, तो आप सीखोगे ही। तो सामने वाला ये चाहेगा कि यार ये बंदा जो है वो सीखे और बाद में मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। तो 5-6 लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं एक कंपनी में इंटर्नशिप में, तो एक तो भी निकल जाए तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर देम। बट सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस फॉर someone who is working for the first time, I would say कि try to get your hand dirty and try to do everything, and don't say no to think कि नो टू थिंग्स कि ये नहीं करूंगा मैं, ये मैं नहीं कर सकता, या मेरे को तो इनिशियली बोला गया था कि ये है। मतलब जो भी बोला जा रहा है आप उसको मतलब कर लो, राइट? जस्ट ट्राई टू गेट योर हैंड्स डर्टी एट थिंग्स, ट्राई टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब कि जो चीज में आपको बहुत इजी लग रहा है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, उससे ना आप कभी भी कुछ सीखोगे नहीं। तो जैसे मेरा भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, तो मार्केट रिसर्च में था। तो फर्स्ट मंथ में कुछ कुछ चीज़ें कर ली, क्वेश्चनेयर और ये सब, थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च हो गया, काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई। तो नाउ इन द सेकेंड मंथ आई वाज कंफ्यूज्ड कि भाई अब क्या करना है। और छोटा कंपनी था, कुछ ज़्यादा गाइडेंस के लिए कुछ था नहीं ऐसा कि आपको ये करना है या वो करना है, कोई बताने वाला भी नहीं था। बहुत छोटी सी कोई कंपनी थी, 10-15 लोग थे उसमें, और जो CEO था वो भी कभी ऑफिस में आता नहीं था, तो ऐसे ही चल रहा था काम बेसिकली। तो खुद से जो करना था। तो सेकेंड महीने में फिर मैंने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि क्योंकि मार्केट रिसर्च था, तो फिर मैं जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आई यूज टू गो विद देम टू, दे यूज टू गो टू हॉस्पिटल्स टू पिच फॉर मेडिसिन एंड ऑल। तो आई यूज टू गो विद देम, और मैं किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ वो जाता था, आई यूज टू गो अलोंग एंड आस्क पीपल फॉर सर्वे एंड ऑल। तो मतलब इतना ऐसा हो गया था कि मैं कहीं भी घुस रहा हूँ, मैं मतलब एम्स दिल्ली में चला गया किसी डॉक्टर के केबिन में, और उसने मेरे को बोल दिया कि कौन हो भाई, आप सर्वे करने आ गए, आपको अंदर किसने आने दिया टाइप। तो मतलब एक टाइम के बाद एकदम वो हो गया था कि थोड़ा बेशरम टाइप। बट इनिशियली मैं सोचता तो शायद ना करता है काम, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार सर्वे फॉर्म भर दो, ये वो, या फिर आपसे कोई मान लो सेल्स का काम करा रहा है। तो जो भी है, इंटर्नशिप क्या, मतलब जॉब के स्टार्टिंग के 1-2 साल तो सब कुछ कर लेना चाहिए। मतलब बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं कि नहीं ये नहीं, ये मेरे लेवल का नहीं है काम, या फिर ये आप उस, ये तो उसका काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कर लेना चाहिए जैसा भी होता है। बाकी आई थिंक मोर देन
कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल जो कि आप कॉलेज में हम लोग ने पढ़े हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, वो तो इतने काम नहीं आते कभी भी। काम आता है आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके एथिक्स, आपका पर्सोना, राइट, आपका हम्म, कन्विक्शन कितना है आपके अंदर, मतलब आपके सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाला कन्विंस हो रहा है कि नहीं, सेल्स वाला जो एक स्किल होता है, ये सब चीजें ही काम आएगी। मतलब चाहे लास्ट एंड का बोलूँ मैं, मतलब फ्यूचर का बोलूँ, चाहे इनिशियल का बोलूँ, बाकी सब कुछ काम नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ जो आप सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलप करोगे वही काम आने वाला है। मतलब चाहे प्रमोशन के लिए हो, चाहे आगे बढ़ने के लिए हो लाइफ में, तो उसी पे वर्क करो। और अगर अच्छे लोग मिलते हैं इंटर्नशिप में तो उनसे थोड़ा कनेक्ट बनाया बनाया, मतलब नेटवर्किंग नेटवर्किंग सब बोलते रहते हैं, वो सही बोलते हैं, मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो भी अच्छा बंदा मिल रहा है आपको, आप उससे बना के रखो, यू नेवर नो कि कब काम आ जाए। मतलब इसलिए नहीं कि काम आ जाए, बट it's good to share knowledge and ask people questions and share your own experiences. तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग टाइम होता है 2 महीने का। इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट आप चाहो तो आप काफी कुछ सीख सकते हो उसमें, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बाद में। क्योंकि जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा तो उसमें यही क्वेश्चन आएगा ना, मतलब सबसे पहले कि इंटर्नशिप में क्या किया आपने। हम्म, तो अगर आपने काफी काम किया होगा ना तो आप में आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाओगे। अगर आपने टाइम पास किया 2 महीने तो आप फिर कहानी सी बना दोगे, तो उसको ही पता चल जाएगा कहानी बना रहे हैं। तो यही है। Thank you for that answer. It will be really helpful for the batch. So the second question is there any incident that you were a part of at IIM Rohtak that you would never forget? ऐसा कोई memory incident? यार मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता ना, मेरे दिमाग में ये सबसे यही आता है कि यार पार्टी बहुत किया है। आई एम रोहतक में क्या किया, वो पार्टी याद आता है मेरे को। तो आई एम रोहतक में एक इंटर्नशिप रिलेटेड ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो कब, आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं इंटरव्यूज, राइट। तो हम्म, दिस वाज आई थिंक November beginning, and I had no call from anywhere. I don't know why. Maybe I was had a very different experience, तो किसी को शायद समझ में नहीं आता था and all। मतलब मुझे तो लग रहा था कि क्योंकि मेरा इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो मेरे को बहुत कॉल्स आएंगी, बट टू माय शॉक मेरे को कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा था इंटर्नशिप के लिए। मतलब मैं कहीं पे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था। तो 1 महीने तो यही चलता रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मतलब अभी सोचो तो इतनी छोटी सी बात लगती है, उस टाइम में इतना बंदा स्ट्रेस हो जाता है कि सर पूरे बैच का हो गया, मेरा कब होगा करके। तो आई थिंक 70-80% बैच का हो गया था ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं, और बहुत कम बचा था। एंड नवंबर एंड में कुछ एक हफ्ते का वो ब्रेक होता है, टर्म के बाद में क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। तो मतलब प्लेसकॉन का रूल था कि अगर आप तब तक सिलेक्ट नहीं हो तो आपको टर्म ब्रेक में कॉलेज में ही रुकना पड़ेगा, हम्म, राइट। तो क्योंकि टर्म ब्रेक था, मैंने अपनी गोवा की टिकट बुक कर ली थी कि मैं उस कॉलेज टाइम में छुट्टी मिलती थी, मैं सोलो ट्रैवल में निकल जाता। तो मैंने अपनी ना टिकट पहले ही बुक करके रखी थी कि तब तक तो हो जाएगा, नवंबर एंड तक तो हो ही जाएगा, कर लेंगे, चले जाएंगे। तो पूरा नवंबर देखते देखते निकल गया, कहीं से कुछ नहीं आया। फाइनली एक जगह से जो मेरे को कॉल आया, वो था आपका लास्ट डे और नेक्स्ट डे आपका टर्म ब्रेक शुरू होना है। और मेरे को पता था कि कॉल तो आ गया भाई गलती से, अब इसमें अगर मेरा नहीं हुआ तो एक हफ्ता रुकना पड़ जाएगा, एक हफ्ता पूरा मैं बर्बाद, सब तो घर चले जाएंगे, मैं ही पड़ा रहूंगा यहाँ पे। तो कैसे भी करके ये तो निकालना है मेरे को। तो इंटरव्यू हुआ और आई थिंक 10 मिनट में मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को नहीं लेने वाले हैं ये। कुछ ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर के सवाल, आई वाज लाइक कि शिट, मतलब नहीं होगा अब तो। तो दे आस्क्ड लास्ट क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी करके। तो मैं थॉट कि भाई तो कंफर्म है कि नहीं होने वाले हैं। तो दिमाग में तो वही चल रहा था कि यार मतलब
करना तो है, नहीं तो छुट्टियां बर्बाद, टिकट विकेट बुक है सब। तो दिमाग में यही चल रहा था और मेरा एकदम सर सा घूम गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने उसको ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया, मैंने कहा आपने मेरे को शॉर्टलिस्ट क्यों किया है बताओ। तो उसने कुछ तो ऐसे हैरान से हो गए, देन दे आस्क्ड सम, दे टोल्ड सम आंसर, एंड वहां से फिर से ऐसे इंटरव्यू पिकअप हुआ। तो मैं 5 10 15 मिनट कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहा, मतलब एकदम ऐसी कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल रहा हूँ। मतलब फाइनली ऐसा हो गया था कि इंटरव्यूअर मुझे खुद बोल रहे हैं कि इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट टेकिंग यू, रिलैक्स रिलैक्स ऐसे। तो फिर मेरे को लगी शायद ले लेंगे, चलो। तो मतलब वही था यार कि उस टाइम में ना, इफ यू वांट समथिंग रियली बैडली, मतलब आप बहुत बुरी तरह कोई भी अगर चीज चाहते हो ना, तो रास्ता फिर निकल ही आता है। तो बड़ा ही एक मेमोरेबल सा था कि तो बाद में फिर मैं आ गया वापस, मुझे लग रहा था शायद ले लेगा, बच जाऊं। तो रिमेम्बर फिर कि रात को कुछ 10 साढ़े 11 बजे रोहित था प्लेस का, और उसका टेक्स्ट मैसेज आया था कि भाई सिलेक्ट हो गया। मैं कहा भाई बच गया। मुझे कोई मतलब नहीं था कौन सी कंपनी है, क्या करती है, मेरे को पता था मुझे कल गोवा जाना है घूमने। तो बच गया मैं। तो हाँ। Yeah, that was such a nice experience. So the third question is, who has been your biggest inspiration in life? यार इंस्पिरेशन आई थिंक इट चेंजेस एवरी ईयर, मतलब हर साल कोई ना कोई डिफरेंट ही होता है, ऐसा एक तो कोई नहीं होगा। कभी कभी आई थिंक विराट कोहली हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। लास्ट 1 ईयर का मैं बोलूँ तो आई हैव बीन वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय जो रोगन। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट गाय। मतलब ऐसे तो आज के टाइम में यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर ही है, और हर बंदा एकदम वो है कि भाई मैं ये हूँ करके। तो इंस्पायर होने के लिए तो हीरोज की कमी है नहीं, मतलब चाहे आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करो, चाहे स्पोर्ट्स की बात करो, या जनरली भी आजकल सब फेमस हुए पड़े हैं। बट हाँ, आई रियली एडमायर जो रोगन, बिकॉज he is a UFC commentator, he is a ex MMA wrestler, he is a world's #1 podcaster. He is also a very famous stand-up comedian. तो मतलब मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि एक बंदा इतने सारे काम एक साथ कर पा रहा है लाइफ में, और अभी भी इफ यू लिसन टू हिम, मतलब ऐसा लगेगा कि इसको और बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। ही इज नॉट डन एंड नॉट हैप्पी कि यार ये मैंने पकड़ लिया है, अब मैं ये करूँ। मतलब उसको चाहिए कि एकदम, मतलब इंटरेस्टिंग टाइप हो लाइफ में कुछ ना कुछ। एंड इफ यू लिसन टू हिम यू विल रियलाइज कि ही इज अ very, the way he speaks, and he is so curious to know, like even though he has so much knowledge, superb knowledge, very intelligent guy, but every time he has a guest on his podcast he will just listen to so patiently. He wants to learn more and more from everyone. So I just love him, like very full of life kind of a human being, very nice positive human being. Yeah. And now I'll ask Lakshmi to carry on with the rapid fire. Yeah, thank you so much for your answers to informal segment question. Now we'll be Sure. moving on to rapid fire round. So in this, I'll just ask you some words, and whatever comes to your mind, you can tell about it in a couple of words or a line. Shall we start? Okay. Sure. Great. So first would be Kathor life. Kathor life, memorable. Deadlines. Uh, never achieved them. I think it's relatable for some students. Uh, Guest lecture. Guest lecture, organizer, because Eric. Best food. Mess food, amazing, very nice. Great to know. Next would be presentations. Presentations, press B. Okay, related to presentation, free riders. Free riders, my best friends. Your roommate. Sorry, Your roommate.
My roommate, I don't even remember actually. Yeah, Infusion. infusion. Uh, fun times, drunk times. Great to know. So the final question I'll ask now in rapid fire is, what is the one question that you wish we should have or we could have asked in this podcast? You could have asked in this podcast. I think what you could have asked is what I could have done differently in I am Rohtak. So, okay, ठीक है मैं जवाब दे देता हूँ. Anyways, what 4-5 minutes left. Actually, I thought I'll put something like this on LinkedIn sometime back to just put in my experience, but I'll say a few things. So again, I'll be philosophical. Okay, so यार ऐसा कुछ मतलब वो रिग्रेट वाला वो नहीं रहता है पर्सनली मेरे साथ में कि यार ये कर लेना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं होता है. बहुत यूजलेस लगता है मुझे ऐसी सोच रखना. बट हाँ, अगर आप कोई पूछे तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी. मतलब वैसे तो कठोर लाइफ, आई एम रोहतक लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था मेरे लिए. मतलब मेरा लाइफ का पहला कॉलेज एक्सपीरियंस था वो, बिकॉज उससे पहले मैं एक नेवल एकेडमी में ही ग्रेजुएशन किया था जिसमें यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन और नो गर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो मेरा पहला लाइफ का कॉलेज एक्सपीरियंस तो मैंने तो फुल जिया है. मतलब एक एक दिन मैंने फुल, ऐसा कुछ मेरे को ये तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए एंड ऑल. मतलब पता था कि जॉब तो लगी जाती है, तो वो मोटिवेशन नहीं था. मेरे था कि थोड़ा बहुत सीखेंगे, जिसमें इंटरेस्ट होगा वो सीख लेंगे. जैसे कंज्यूमर बिहेवियर वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. डिजिटल मार्केटिंग. तो 3-4 ही थे जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते थे. उसमें मैंने अच्छे से ध्यान दिया. जो मेरे को लगता था, गेम थ्योरी बहुत अच्छा था. जो चीज़ें मेरे को लगती थी कि यार इसमें इसमें तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को, ये मेरे को करना ही नहीं है लाइफ में, तो क्यों ज़्यादा कुछ. बट अदरवाइज मैं बोलूँ तो ऐसा बहुत टाइम होता था जिसमें मुझे लगता था कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है. मतलब अगर अभी मैं अभी सोचूं तो शायद मैं कुछ नया स्किल सीख लेता उस टाइम में. राइट. मतलब काफी चीजें होती हैं सीखने के लिए आजकल तो. मतलब आपको जो भी सीखना है आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो और आप कुछ भी नया स्किल पकड़ सकते हो. राइट. तो बहुत टाइम होता था, अभी मुझे लगता है, जो मैंने ना मस्ती में बहुत ज्यादा वेस्ट किया है. मतलब कंपटीशन भी जो होते हैं उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत पार्ट लिया, बट शायद और ले सकते थे और कुछ नया सीख लेते. तो मुझे लगता है कि शायद I could have made more out of my time there. मतलब no, apart from classroom, मतलब बाकी पीरियड से तो सीखा ही है. बट जो खाली टाइम होता था ना उसमें शायद मुझे और अपने लैपटॉप के सामने रिसर्च करने में टाइम स्पेंड करना चाहिए था कि क्या कर सकते हैं. मे बी बैठे बैठे कुछ वेबसाइट डेवलप कर लिया. आजकल तो बहुत इजी है, कुछ ऐप डेवलप कर लिया, ऐप भी बनाना बहुत इजी हो गया. तो ये सब मैं कर सकता था मेरे को लगता है, जो कि मैंने नहीं किया. बट मे बी आप कर लेना. Got it. So this actually brings us to the end of this discussion. We wish to wrap up this session by thanking you for taking your valuable time and sharing your insights with us. We had a great time doing this and we look forward to keeping in touch with you. And for all the viewers, thank you so much for watching. Stay tuned. Okay, thank you. Thanks for inviting.